हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज योर उज्जवल सर। टुडे आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके मैं आया हूं। वो टॉपिक है द किंगडम प्रोटिस्टा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। बिकॉज आप लोग जानते हो, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो कि क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 11 एंड प्लान किंगडम, दीज टू टॉपिक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं जानता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है। फाइन, बिकॉज आप लोग रिलेट नहीं कर पाते हो, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग एबल टू विजुअलाइज वो देखने में कैसा है, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर। सो और ऐसा भी नहीं है कि क्लास 10 तक आपने ये पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू have this particular topic. So this topic is very very important. We are going to start with kingdom protista. Kingdom protista, we have already completed kingdom Monera, we have completed Archaebacteria, we have completed Eubacteria, and also we have completed blue-green algae. So today I'm going to start with kingdom protista. So एकदम पेन पेपर लेकर रेडी हो जाओ and let us start with this knowledge concept of what? Kingdom protista. So kingdom protista is we are going to talk about under kingdom protista. We are going to talk about chrysophytes today. But before we start with chrysophytes, thoda sa information about what is kingdom protista is all about. So when we talk about kingdom protista, we know that it includes all unicellular. It includes all unicellular eukaryotes. But in this unicellular eukaryotes, majority of them, there are 5 different types. But majority of them are autotrophs. 5 तरह के होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, और वो क्या क्या है? The first one is called chrysophytes, जो आज का टॉपिक है. So we need to start with chrysophytes first. Then the second one is dinoflagellates. The third one is euglenoids. And then the fourth one is slime molds. And the last one is protozoans. So out of these 5 types, ये पहला तीनों, the first 3, ये पहला 3, ये तीनों autotrophs है. So they can make their own food. They're autotrophs. And आप जानते हो, अगर आप वो वीडियो देख लिए बायो क्लासिफिकेशन, the basics of bio classification, where we have talked about that after 6 kingdom classification given by Carl Woese, जिन्होंने किसको ऐड किया था? किंगडम आर्कीबैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दिए थे. एंड आफ्टर दैट 6 kingdom classification, the person named Cavalier Smith, who gave the 7 kingdom classification, he introduced another kingdom named kingdom Chromista. So ये क्रोमिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बट ऑटोट्रॉफ्स वो आ गए. सो ये तीनों, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड. इससे तो समझ में आ रहा है, मोल्ड से समझ में आ रहा है. दे आर सैप्रोफाइटिक. फंगस को हम मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड. सो दे आर सैप्रोफाइटिक. पर ये ब्रेड मोल्ड नहीं है, ये स्लाइम मोल्ड है. एंड द लास्ट वन इज पैरासाइटिक, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम. सो ये क्या है? दे आर पैरासाइटिक इन नेचर. सो दीज 3 आर द टाइप ऑफ प्रोटिस्टा जिनका काम क्या है? वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. That means they do have chlorophyll with them. So we will talk about them. But again, before getting into chrysophytes straight away, हम थोड़ा देख लेते हैं ये प्रोटिस्टा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Because this is the protista for the first time. हम देखेंगे इसमें sexual reproduction. क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिकॉज इसके पहले मोनेरा में भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे, स्पेशली इन बैक्टीरिया. वी हैव सीन दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नंबर 1 conjugation, number 2 transformation, number 3 transduction. But over here they have got some special type of sexual reproduction. We will talk about that. So let's get into some details of it. देखो, कुछ प्रोटिस्टेंस हैं. There are some protistants हैं जो
उनका कंप्लीट लाइफ साइकिल में वो हैप्लॉइड है, दैट मींस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, and very few of them they are diploid, that means they have got 2n number of chromosomes in their life cycle. अगर आप हमारे साथ कंपेयर करो तो हमारा लाइफ साइकिल क्या है, मैक्सिमम डिप्लॉयड है हमारे सेल्स, बट इनसाइड गोनाड्स, हमारे जो गोनाड्स है, गोनाड्स दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी में, टेस्टिस एंड ओवरी, व्हाट हैपेंस इनसाइड टेस्टिस एंड ओवरी, मियोसिस होते हैं, मियोसिस होते हैं. सो जाइगोट बनने के बाद इमीडिएटली तो मियोसिस नहीं होता है हम में, इमीडिएटली आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन तो मियोसिस नहीं होता है. जाइगोट बना, उस जाइगोट से पूरा ह्यूमन बॉडी बना, जेस्टेशन पीरियड लगा, देन शादी करने के उम्र तक आया, उसके बाद मियोसिस, नथिंग अबाउट इट. मियोसिस टेक्स प्लेस आफ्टर सम डेवलपमेंट. तो ये डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, ये मेजॉरिटी डोमिनेंट लाइफ साइकिल में क्या है, द डोमिनेंट लाइफ साइकिल में 2n है. सिर्फ जब गैमेट बनना होता है, स्पर्म बना एंड ओवम बने, एंड दे शो NN, मतलब ये स्पर्म और ओवम बनने के लिए दिस डिप्लॉयड सेल्स दे आर गोइंग टू शो व्हाट, द डिप्लॉयड सेल्स आर गोइंग टू शो मियोसिस. मतलब एडल्ट बॉडी में मियोसिस होने के बाद गैमेट बनेगा. इन केस ऑफ मेल बनेगा स्पर्म, इन केस ऑफ फीमेल बनेगा ओवम, एंड दीज टू गैमेट्स आर गोइंग टू शो सिनगैमी. क्या बनाएगा, सिनगैमी दिखाएंगे, एंड दिस सिनगैमी इज गोइंग टू अगेन फॉर्म इनटू जाइगोट, और जाइगोट बनने के बाद एंटायर लाइफ साइकिल क्या बन गया, 2n. सो अगर एंटायर लाइफ साइकिल 2n है, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल वी कॉल इट एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. क्या कहेंगे इसको, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो हमारा है इन हायर ऑर्गेनिजम्स, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम दिखाते हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ मियोसिस वी कॉल इट, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस. वी कॉल इट गैमेट बनने के लिए मियोसिस हुआ. सो अगर होल प्लांट, होल बॉडी अगर 2n है, देन ओनली वी आर गोइंग टू शो गैमेटिक मियोसिस टू फॉर्म अ न्यू लाइफ. बट यहां पे अगर पूरा बॉडी n है, हैप्लॉन्टिक है, पूरा n, पूरा बॉडी n है, एंटायर लाइफ साइकिल n है, तो एडल्ट में एडल्ट क्या दिखाएगा, द एडल्ट इज गोइंग टू शो माइटोसिस, बिकॉज एडल्ट में तो n क्रोमोसोम नंबर है. सो मियोसिस तो नहीं होने वाला है, बिकॉज मियोसिस होने से क्या होगा, n/2 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है. एंड अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा, दो गैमेट बनाएंगे, एक है मेल गैमेट, एक है फीमेल गैमेट, और दोनों में सिनगैमी होगा. दोनों में क्या होगा, सिनगैमी. सो सिनगैमी होगा, और सिनगैमी होने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा. और जाइगोट बनने के बाद इमीडिएटली 2n बनने के बाद क्या होगा, एडल्ट बॉडी में इमीडिएटली इसमें क्या बनेगा, एडल्ट बॉडी में नहीं, जाइगोट में मियोसिस होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस. क्या कहेंगे इसको, जाइगोटिक मियोसिस. सो जाइगोट में मियोसिस बन गया, एंड द एडल्ट बॉडी जो बनेगा, जो स्पोर बनेगा, उससे वो कभी एडल्ट बनेगा, एंड दैट एडल्ट बॉडी विल बी आइदर इज गोइंग टू बी ऑलवेज n. प्रोटिस्टा में, इन मेजॉरिटी ऑफ प्रोटिस्टा वी आर going to see they are haploid, और haploid होने के कारण what kind of meiosis they show, they show zygotic meiosis or haploid life cycle. So that is very very important. थोड़ा इसका डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं. Let us see this diagram. So थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा. Let us see this diagram. Yes, this is the diagram. Let's have it. ये haplontic life cycle है, मतलब पूरा बॉडी क्या है, the body of this, the whole life cycle is haploid. That means body क्या है, n है, body is n, body is n. अब n में देखो adult body भी n हो गया, तो क्या होगा वहां पे, एडल्ट में क्या होगा, माइटोसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस, एंड थ्रू माइटोसिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, गैमेट बनेंगे, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट. मेल और फीमेल गैमेट में क्या होगा, सिनगैमी होगा, सिनगैमी. एंड माइंड यू माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज आपको जानना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या है, ये दो गैमेट सेम साइज के हो सकते हैं. These two gametes can be morphologically similar in size, and that's why this kind of gamete is called, इस syngamy का स्पेशल नाम हम दे सकते हैं. What is that? They are called isogamy. Isogamy. What is the meaning of iso? Similar, same. Isogamy. Gamy मतलब क्या है? Marriage. So same type of
मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट होगा, स्पोर होगा, तो क्या कहेंगे? आइसोगैमी. ओके, समटाइम्स व्हाट कैन हैपन, द टू गैमेट्स आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, क्या कहेंगे उसको? एनाइसोगैमी. और अगर ये एनाइसोगैमी में द मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड द फीमेल गैमेट इज लार्जर, तो स्मॉलर गैमेट लार्जर गैमेट को फर्टाइज करेगा. द स्पेशल टाइप ऑफ एनाइसोगैमी इज कॉल्ड oogamie, where the male gamete is motile or ovum is not motile. So this kind of gamete is called oogamie, जो हम हायर ऑर्गेनिज्म सिखाते हैं. Now, mind you, so this is called as haploid life cycle, otherwise called as zygotic meiosis. क्या कहते हैं? Zygotic meiosis. So ये दिखाते हैं majority of the what protistans, but some of them, like आज का जो टॉपिक है, I'm going to show you in this topic, some of them they have got the whole body is 2n, the whole body is 2n. तो वो adult body क्या रहेगा? 2n. तो 2n में क्या होगा? Meiosis. Meiosis से दो गैमेट बनेंगे. And these two gamete by syngamy is going to show what? Is going to form zygote. But zygote बनने के बाद immediately zygote में meiosis नहीं होगा, and that is why they are called. Adult में meiosis होगा, इसलिए इसको कहते हैं gametic meiosis और diplontic life cycle. These two are very very important to understand protista, जो NCERT में informations lag है. Now think about it. ये था दो तरह के लाइफ साइकिल, एक है हैप्लॉन्टिक, एक है डिप्लॉन्टिक, एक है जाइगोटिक और एक है व्हाट? एक है गैमेटिक मियोसिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्राइजोफाइट्स. क्या पढ़ेंगे? क्राइजोफाइट्स के बारे में. सो क्राइजोफाइट्स ये स्पेशल टाइप ऑफ, एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटिस्टेंस है जिसमें क्राइजोफाइट्स they are very very special because इनमें तो क्लोरोफिल रहना है. they have got chlorophyll A, they have got chlorophyll C, and also they have got fucoxanthin. They have got fucoxanthin pigment, और ये fucoxanthin is one type of xanthophyll, और ये xanthophyll इस क्राइजोफाइट्स में they can give a golden color. They can give a golden color. Fine. So ये क्राइजोफाइट्स ये नॉर्मली देखने में कैसे हैं? They look like, इनका सेल वॉल है प्रोमिनेंट सेल वॉल, और जो ऊपर वाला सेल वॉल है that is called एपिथिका, that is called एपिथिका, और नीचे वाला जो सेल वॉल है it is called as हाइपोथिका. और ये जो सेल वॉल है, the cell wall contains what? Silicon embedded. Silicon embedded है. So the cell wall is impregnated with silicon. With silicon. Fine. और ये देखने में कैसा लग रहा है? This looks like soap box. So what is so special about it? They look like soap box. साबुन का बॉक्स जो है, अगर यहां पे साबुन रहता है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. फाइन. एंड ये यूनिसेलुलर है, पर सेल वॉल ऐसा है. इसका शेप कैसा हो सकता है? सोचो, इसका शेप हो सकता है, द शेप ऑफ दिस कैन बी बोट शेपेड, दे कैन बी रेक्टेंगुलर शेपेड, दे कैन बी ट्रायंगुलर शेपेड, दे कैन बी ट्रायंगुलर शेपेड. सो इनका शेप डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं. पर अगर ये मर गया, द मोमेंट दे आर गोइंग टू डाई, डेथ के बाद सिलिकॉन तो ऑलरेडी मरा हुआ है. सो सिलिकॉन इज गोइंग टू मेक, एज बिकॉज दे आर प्रेजेंट वेयर? दे आर प्रेजेंट इन वाटर बॉडी. कहां पे? कौन से वाटर बॉडी में? दे आर प्रेजेंट इन मेरीन एज वेल एज इन एक्वाटिक वाटर्स. सो ये मेरीन वाटर में ये मरने के बाद द सिलिकॉन इज गोइंग टू रिमेन इन द सी फ्लोर. एंड दिस सी फ्लोर में दिस सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है, द एग्रीगेशन ऑफ देम इज गोइंग टू मेक लार्ज चंक्स ऑफ रॉकी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डायटोमेशियस अर्थ. क्या कहेंगे इसको? डायटोमेशियस अर्थ. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायटोमाइट.
and also we can call them as Kieselguhr. Kieselguhr. This is the name. So diatomaceous earth, diatomite and Kieselguhr, and they make the sea floor. और sea floor का कलर क्या है? Golden है. Come on, what is the reason for that? Silicon embedded, and they have got the pigment called fucoxanthin. So ये खाना बना, जिसके पास क्या है? They have got chlorophyll, so they can make their own food. और food को किस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं? What form the stored food is present in them? The stored food is present in them in two forms basically. One is called leucozyme and some amount of fats. Leucozyme and fats. This is the type of stored food that they have. Now, ये normally, these chrysophytes, they are normally immotile. Because हमने तो कोई flagella नहीं देखा, तो ये immotile है, move नहीं कर सकते हैं. They cannot move by themselves. So ये पानी के flow के साथ वो passively move करते हैं. They move passively with the water body. Water body के साथ उनका movement होता है. So basically इनको हम क्या कहते हैं? They are called as golden algae. ये नाम क्यों आया है? Where from the name has come? Golden term has come from fucoxanthin. Golden algae. Why algae? Because they are chlorophyllous. ये खाना बना सकते हैं. And they are also called as desmids. They are also called as desmids. Fine. Now, अब ये क्राइजोफाइट्स, ये अगर डेड है और सिलिकन है तो एक बोर्ड शेपेड है, एक रेक्टेंगुलर शेपेड है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा. और ये एग्रीगेशन करके रहा है, सो गैप विल बी कंटेनिंग सम गैप विल बी कंटेनिंग सम एयर फील्ड. और अगर एयर फील्ड है, ये क्या होगा? ये एयर फील्ड मतलब इसको हम लेकर साउंड प्रूफिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज देम एज साउंड प्रूफिंग मटेरियल. साउंड प्रूफिंग मटेरियल की तरह हम यूज कर सकते हैं टू स्टॉप रिवर्बरेशन, टू स्टॉप रिवर इको ना हो, उसके लिए हम वॉल में इसको बना सकते हैं. Here we can also use as because they have got silicon. So if they have got silicon, देखो आपके घर में जो गाड़ी है, उस गाड़ी का मेन जो आप वॉश करते हो वो है सिलिकॉन वाला. that contains silicon inside. Silicon can act as a polishing agent. So we can also use these chrysophytes as polishing agent. Yes, my dear students, if there is a gap between two chrysophytes, मरे हुए chrysophytes, so उसको हम as because they are bad conductor of heat, they are bad conductor of heat, so we can use them in steam boilers. Steam boiler में हम यूज कर सकते हैं उनको. They can also help in filtration syrups. Filtration syrup में हम यूज कर सकते हैं because that gap is going to act as a filtration unit. Filtration syrups में भी हम यूज कर सकते हैं. So these are the economical usage, but mind you about what kind of reproduction they are going to show. किस type का reproduction देंगे? When we talk about diatoms, diatoms are 2N. They are diploid. So if they are diploid, what kind of meiosis they are going to show? They are going to show gametic meiosis. What kind of meiosis they are going to show? What is the life cycle? The life cycle is diplontic life cycle or gametic meiosis. This is very special about diatoms. Fine. So if we see what has been given by NCERT, थोड़ा सा NCERT को अगर देखें, so this group includes diatoms and golden algae. They are found in fresh water as well as marine environment. They are microscopic and float passively in water currents. Plankton कहते हैं इसलिए. Most of them are photosynthetic. See, most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells. वो cells को हम क्या कह सकते हैं? We can also call these cells as cell wall की composition को हम क्या कह सकते हैं? We can call these cell walls as shells or frustule. We can also call them as frustule. So this is also very important about cell wall is also called as frustule. Now देखो, thin overlapping shells which fit together as in a soap box. Soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are
इंडेस्ट्रक्टिबल, बिकॉज सिलिकॉन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, वो इंडेस्ट्रक्टिबल है. Thus diatoms have left behind huge amount of cell wall deposits in their habitat. जहां पे वो रहते हैं वो सिलिकॉन भरे हुए रहते हैं वहां पे. दिस एक्युमुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या बनाएगा, सी के फ्लोर में क्या बनाएगा, डायटोमेशियस अर्थ, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वी कैन आल्सो कॉल देम एज डायटोमाइट और किजलगुड. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrup. Diatoms are the chief producer in the ocean. This is very very important concept. ये जो चीफ प्रोड्यूसर कहा गया है डायटम्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन. माइंड यू, माय डियर स्टूडेंट्स, as because we are studying to have our career, so this is what clear. So this was the information about क्राइजोफाइट्स. सो माइंड यू, ऐसे 5 तरह के प्रोड्यूसर्स को हमें पढ़ना है. दिस वाज द फर्स्ट वन कॉल्ड क्राइजोफाइट्स, बट इन द नेक्स्ट वन कॉल्ड व्हाट, नेक्स्ट वन इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग डिफरेंट. ये कौन से डिवीजन से आता है? दिस क्राइजोफाइट्स कम्स अंडर डिफरेंस डिवीजन क्राइजोफाइटा, डिवीजन क्राइजोफाइटा. पर अभी इसके बाद वाले जो वीडियो में हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स व्हिच कम्स अंडर डिवीजन पाइरोफाइटा. पाइरो मतलब क्या है? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. पाइरो मींस व्हाट? एंड माइंड यू, डाइनोफ्लैजिलेट्स इज द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड माइंड यू, पढ़ो जी जान से.